Hello guys, so I am Madhvi Negi and welcome to my channel. Today we are going to discuss about the types of species in ecology. There are various types of species in ecology, but we will have some basis of classification for today and we'll cover some species. So without wasting any time, let's get into it. First of all, let's get familiar with what these terms actually mean. First of all, as you know, we are studying about species in ecology. So, what ecology is? So, ecology is the study of how living things interact with each other and environment. It is a very basic thing to know that ecology हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, but what it is, ecology is nothing but the study. जब हम living things और non living things के interaction की बात करते हैं आपस में या उनके environment के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उस study को कहते हैं ecology. It looks at plants, animals, and humans, which are living things, and other non-living things such as air, water, soil, and sunlight, and how they all work together in nature. That's what ecology is. And moving on to our next term, what do you mean by species? Species एक बहुत ही familiar term है, but let's discuss it in brief. A species is a group of similar organism capable of interbreeding and producing fertile offspring. ठीक है, हम species उन group के लोगों को कहते हैं which are capable of interbreeding, means the organisms which can interbreed and produce fertile offsprings, which means their offsprings can also breed. Okay, they have capability and they are fertile. They are known as species. Why is it important to study about species and ecology? It is it is very necessary, because if we don't have knowledge, how are we going to understand our ecosystem? How are we going to research about them? And mainly, how are we going to conserve it for our future generation, which is very necessary. We need conservation strategies with the time we are living in. So इकोसिस्टम मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल रिसर्चेस के लिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. So let's move on to the topic, which is what are our basis of classification for this video. Classification of species can be on the basis of their role in ecosystem. What are their roles in the ecosystem? Response to the changes, how they respond to the changes in their environment, in their surroundings. That is how we are going to differentiate or classify them. Which resources are being used by them, किस टाइप के रिसोर्सेज पे वो क्या वो खाते हैं, रहते हैं, उनके बेसिस पे हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस टाइप की स्पीशीज है. ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू फर्स्ट स्पीशीज which is keystone species. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट फेमिलियर विद व्हाट कीस्टोन इज. कीस्टोन हमारे पास एक वर्ड है जो कि आर्किटेक्चर से लिया हुआ है. ठीक है, the keystone is the central stone in an arc that holds all other stones in places. Similarly, a keystone species hold the ecosystem together. तो जब हम इस आर्क को देखेंगे, यहाँ आप देखिए ये गेट पे लगा होता है, दरवाजों पे लगा होता है. This main stone here, it helps in balancing all these and keeping them together. ये सारे के सारे जो पत्थर हैं, इनको साथ रखने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए ये वाला पत्थर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसको इसलिए की स्टोन कहा गया है. की स्टोन का मतलब यहाँ पे मेन स्टोन का है. ठीक है, इट मीन्स द मेन स्टोन हेयर. तो keystone species is a species that has disproportionately large impact on its ecosystem relative to its abundance. Removing it causes major changes in the structure and function of the ecosystem. ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है जो हमारी कीस्टोन स्पीशीज है वो डिसप्रोपोर्शनेट होती है अपने इम्पैक्ट के साथ. मतलब हो सकता है कि उसका नंबर छोटा हो सकता है कि वो नंबर में एक या दो ही प्रेजेंट हो. मतलब ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव एलिफेंट. मतलब फॉर एग्जांपल, ओके, इफ वी हैव टू एलिफेंट्स एंड they are balancing the whole ecosystem. Okay, it does not matter if they are only two, but their role is major. Okay, so that's how it means disproportionately large impact on its
ecosystem relative to its abundance. Abundance में वो कम हो सकते हैं, but their role is major. Okay, moving on to the features of keystone species. They have high ecological impact. As I said, their presence or absence significantly affects the composition of the community. ठीक है, not necessarily abundant, उनका बहुत ज़्यादा नंबर में होना ज़रूरी नहीं है, कम नंबर में होके भी they have huge impact. Regulate population, they are very much responsible for controlling the populations. Okay, it maintains biodiversity, which means their activities allow many other species to survive. इनकी वजह से बैलेंस बना रहता है. ठीक है, कैसे बैलेंस बना रहता है कि प्रे का नंबर ज़्यादा नहीं होगा, कॉम्पिटिटर्स का नंबर ज़्यादा नहीं होगा, उनका नंबर कम नहीं होगा. दे हेल्प इन द रेगुलेशन और मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आप शायद ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेंट्स. ठीक है, एलिफेंट्स नॉक डाउन ट्रीज एंड क्रिएट ओपन ग्रासलैंड्स, शेप एंटायर सवाना इकोसिस्टम. ओके, तो जैसे ही हमारे पास कोई भी ग्रासलैंड है और वहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ जब उगते हैं तो वो बहुत छोटे साइज से उगना शुरू करेंगे. ओके, और उसमें क्या होता है, जो हाथी होते हैं वो दे विल स्टेप ऑन देम. ओके, दे वोंट लेट देम ग्रो, और वो मेंटेन करते हैं ग्रासलैंड को ग्रासलैंड की ही तरह. ठीक है, अगर वहाँ से हाथी गायब हो जाते हैं, जो प्लांट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे और वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रासलैंड्स. ठीक है, उसी तरह से बैनियन ट्री आपको पता है, banyan tree एक इकलौता ट्री है, but it is house to various organisms such as birds, animals and all. तो एक ही ये जो ट्री है, it is only one in number but it is responsible for a huge ecosystem. वैसे ही सी ऑटर की बात करें, जो हमारे पास सी ऑटर है वो सी अर्चिन्स को खाते हैं, जो हमारे पास सी अर्चिन्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, जो हमारे केल्प फॉरेस्ट होते हैं ना, जो हमारे ओशंस में केल्प फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको ओवरग्रेज करके केल्प फॉरेस्ट को कोलैप्स करवा देते हैं. तो सी अर्चिन हमारे पास ओवरग्रेज नहीं करनी चाहिए. उनका प्रीडेटर होता है सी ऑटर, जो कि उसको बैलेंस करके रखता है, उनका नंबर नहीं बढ़ने देता, और इस वजह से हमारा जो केल्प फॉरेस्ट है वो फ्लरिश करता रहता है. ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज. ठीक है, अम्ब्रेला स्पीशीज. An umbrella species is a species that needs large area of habitat to survive. When we protect this species and its habitat, we also protect many other species that live in the same area. The name umbrella means that one species provide protection to many others, just like umbrella covers you from the rain. ठीक है, ये तो हो गया, तो हम इसको अब इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं. अम्ब्रेला स्पीशीज हमारे पास एक बहुत बड़े एरिया में रहने वाली स्पीशीज है. ठीक है, इनका जो हैबिटेट होगा, जहाँ ये सर्वाइव करेंगी, वो बहुत ही बड़ा होगा, और जब हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तब हम इनके साथ रिजाइड करने वाली और जो बाकी स्पीशीज है इतने बड़े एरिया की, उनको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, इसका मतलब है हम यहाँ पे इस स्पीशीज को एक अम्ब्रेला का दर्जा दे रहे हैं. ठीक है, जैसे ये अम्ब्रेला है और इस आदमी के लिए ये इसका रिसोर्स था, बट इसकी वजह से ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे जो आदमी है यहाँ पे, ये भी बच रहे हैं. जिस तरह से अम्ब्रेला स्पीशीज को बचाते हुए हम और भी स्पीशीज को कंजर्व कर लेते हैं. ठीक है, तो इसके थोड़े से फीचर्स जान लेते हैं. इसके फीचर्स में हमारे पास, जैसे हमने डिस्कस किया, इट हैव लार्ज होम रेंज, है ना, ये बहुत ही बड़े एरिया में रहेंगे, जिस वजह से वहाँ पे रहने वाली बाकी जो छोटी स्पीशीज हैं वो भी कंजर्व हो जाएंगी. मतलब इनको प्रोटेक्ट करते हुए, अम्ब्रेला स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हुए हम बाकी स्पीशीज को भी कंजर्व कर लेंगे. इनके पास ये जो होता है, ये शेयर्ड हैबिटेट में रहेंगी, विच इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, क्योंकि हमने इनका मेन फंक्शन ही क्या है यहाँ पे, अम्ब्रेला स्पीशीज, मतलब इनको बचाते हुए हम बाकी स्पीशीज को बचा रहे हैं. और हम उनको कब बचा पाएंगे, जब वहाँ पे और भी स्पीशीज रहती होंगी. ठीक है, और भी स्पीशीज को एग्जिस्ट करती होंगी. ये कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट इनको कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए यूज़ करती है. एक स्पीशीज़ को बचाने के मकसद से बहुत सी सारी स्पीशीज़ हम कंजर्व कर लेते हैं. ठीक है, दे आर ऑफन द टॉप प्रेडेटर्स. टॉप प्रेडेटर्स मतलब जब हम फूड चेन पढ़ते हैं, उसमें जो टॉप लेवल पे हमारे पास स्पीशीज़ रहती हैं, दे आर, जो अम्ब्रेला स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म है, दे आर जनरली दो स्पीशीज़ जो फूड चेन पे टॉप पर रहते हैं. ठीक है, टॉप प्रेडेटर्स होते हैं. दे कैन बी डिफिकल्ट टू कंजर्व. क्यों डिफिकल्ट होते हैं? बिकॉज इट कैन बी क्वाइट ट्रिकी बिकॉज ऑफ देयर वेरी लार्ज एरिया.
तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और ट्रिकी हो सकता है कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स इसके। एग्जांपल्स में हम देख लेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टाइगर्स और जायंट पांडा। टाइगर्स हमारे पास ये नीड्स लार्ज फॉरेस्ट टू हंट एंड लिव। जो हमारे पास टाइगर्स होते हैं वो बहुत बड़े एरिया में रहते हैं, हंटिंग करते हैं। इनको बचाते हुए हम बहुत सारे डियर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मंकी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फॉरेस्ट प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ये जाइंट पांडा है, ये बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। इनको फॉरेस्ट बैम्बू फॉरेस्ट में रहते हैं और इनको कंजर्व करते करते हमारे जो और प्लांट्स और एनिमल उस एरिया में रहते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पीशीज, दैट इज फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज हमारे पास कैसे हम कहेंगे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अम्ब्रेला स्पीशीज, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अम्ब्रेला स्पीशीज़ में हम क्या करते हैं कि हम उसके जो हैबिटेट है उसको ध्यान में रखते हुए कि वो बहुत बड़े हैबिटेट में रहता है, तो हम उसको कंजर्व करते हुए और स्पीशीज़ को कंजर्व करते हैं। बट यहाँ पे हम कोई ऐसी स्पीशीज़ लेंगे जो कि बहुत ही वेल नोन, अट्रैक्टिव और लव्ड बाय पीपल है। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स कुछ जो जिनको नॉर्मल पब्लिक जो बहुत ही इंटरेस्टेड है जानने में, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लेंगे, ऐसे एनिमल्स को लेंगे जो कि सिंबल की तरह काम करेंगे, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सिंबल की तरह काम करेंगी और उनके ज़रिए हम पब्लिक में अवेयरनेस, फंडिंग और अटेंशन जो है वो पाएंगे, ओके। जैसे कि हम किसी देश का झंडा लगाते हैं और वो हम सबको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑल द इंडियंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लैग। उसी तरह से ये फ्लैगशिप स्पीशीज है, ये अपने पीछे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को लेके चलती हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगी तो ये ज़्यादा बेटर समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फीचर्स। इनके रहेंगे, दे आर वेरी पॉपुलर, ब्यूटिफुल, क्यूट, दे आर बेसिकली यूज्ड इन कैंपेन्स। इनको फंड रेजिंग के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के लिए यूज़ किया जाता है। और हो सकता है दे ओवरलैप विद अदर टाइप्स, मतलब ये स्पीशीज़ हो सकता है किसी इकोसिस्टम में एज अ कीस्टोन स्पीशीज़ काम कर रही हो या फिर एज एन अम्ब्रेला स्पीशीज़ काम कर रही हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इनका इकोलॉजिकली भी कोई रोल हो, ठीक है। हो सकता है कि ये सिर्फ देखने में अच्छी हो और इनका इतना एज सच कोई इम्पोर्टेंट रोल ना हो, but they are not always ecologically important, but usually they are used for the awareness purpose, ठीक है। So let's see the examples। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जैसे कि बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर जो हमारे पास है, इट इज़ अ सिंबल फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। ये सेंट्रल फिगर है हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर का। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बचाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। बट जब हम इसकी फोटो की बात करते हैं, जब भी आप टाइप करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसमें टाइगर आएगा और लोग अवेयर हो जाएंगे, मतलब दे विल गेट टू नो अदर थिंग्स आल्सो थ्रू दिस फ्लैगशिप स्पीशीज, ओके। नेक्स्ट इज पोलर बियर। पोलर बियर हमारे पास क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फोटो लगाकर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जिसमें हम क्लाइमेट अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। इसका ये बताता है हमको, जो ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, द इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग आइस एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए जो हम ऑर्गेनिज्म की फ़ोटो यूज़ करते हैं वो है हमारे पास पोलर बियर, ठीक है। सो आर नेक्स्ट स्पीशीज इज इंडिकेटर स्पीशीज, ओके। An indicator species, which is also called as sentinel species, is a species that shows the health or condition of an environment. They give early warnings when the environment is polluted or damaged. These species are very sensitive to changes in air, water, climate, etc. तो क्या कहेंगे हम, इंडिकेटर स्पीशीज जैसे आप नाम से ही जान पा रहे, दे इंडिकेट समथिंग। सो हेयर व्हाट दे आर इंडिकेटिंग द चेंजेस in their environment, which can be pollution or any kind of damage in their environment, okay। What are the features? Features are that they are highly sensitive, थोड़े से change से भी environment में they react, okay। They react quickly to the population, toxins or habit changes, okay। They have early warning signs. Their decline often happens
बिफोर अदर स्पीशीज एंड आर अफेक्टेड, मतलब सबसे पहले यही हैं जिनमें चेंजेस देखे जाएंगे व्हेन द एनवायरनमेंट इज चेंज। यूज्ड इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इनके फीचर्स जानने के बाद दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। ओके, ऑफन स्मॉल एंड कॉमन क्रिएचर्स जैसे कि इंसेक्ट, फ्रॉग और लाइकेंस भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हेल्प प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ टू, इनके इनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन हो रहा है वाटर में या एयर में, तो इससे हम ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि हमने कहा लाइकेंस। ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स इट। जैसे ही पॉल्यूशन आता है हमारे पास, एयर पॉल्यूशन, इनका नंबर है वो बहुत डिक्लाइन कर जाता है। दे कांट सर्वाइव इन पॉपुलेशन। तो अगर हमारे पास वहाँ पे लाइकेंस की पॉपुलेशन कम हो रही है, इट मीन्स जो एयर पॉपुलेशन है वो हमारे पास, एयर पॉल्यूशन है वो हमारे पास बढ़ रहा है। ठीक है, फ्रॉग्स एंड एम्फीबियंस, इनकी जो स्किन है, ठीक है, इनकी जो स्किन होती है वो हमारे पास बहुत जल्दी पॉल्यूटेंट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर पानी में थोड़ा भी पॉल्यूशन हो रहा है तो ये डिसअपेयर हो जाएंगे उस जगह से। ठीक है, सो नेक्स्ट स्पीशीज इज स्पेशलिस्ट स्पीशीज। ओके, स्पेशलिस्ट स्पीशीज हम नाम से देखेंगे, दे रिक्वायर समथिंग स्पेशल। ओके, स्पेशलिस्ट स्पीशीज बहुत ही पर्टिकुलर स्पीशीज होती हैं, मतलब अ स्पीशीज that can live and survive only in specific environment and only eat certain type of food. These species are highly adapted to narrow set of conditions like one type of climate, one habitat, one kind of food. They are very picky eaters or animals with very specific living needs. इनको जो चाहिए, they need very specific condition. ठीक है, इनको जो टेम्परेचर होगा बहुत ही नैरो रेंज में टेम्परेचर रहेगा इनका। they can't survive in, मतलब अगर उनके टेम्परेचर है कि वो मॉडरेट टेम्परेचर में रह रही है या फिर रूम टेम्परेचर में रह रही है, तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे इफ़ द टेम्परेचर राइजेस और लोअर्स। उनके लिए अडेप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है और दे कांट सर्वाइव इन दैट। ठीक है, उनको जो उनकी ईटिंग हैबिट्स है उसके लिए भी बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का फूड चाहिए होता है और दे आर नोन एज वेरी पिकी ईटर्स। उनको बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए होती है, एज आई सेड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट स्पेशलिस्ट स्पीशीज आर। ठीक है, इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो इनके फीचर्स जो हमारे पास हैं, दे हैव अ वेरी नैरो रेंज ऑफ हैबिटेट। एज आई सेड, वो बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों पे रहते हैं, खाते हैं। उनका हैबिटेट बहुत छोटा होता है, पर्टिकुलर होता है। उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत स्पेसिफिक डाइट फॉलो करते हैं एक टाइप का, जैसे कि इफ़ दे आर लिविंग ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ प्रे, तो वो किसी और का जो है वो दे वोंट हंट अदर ऑर्गेनिजम्स टू ईट। इफ दे वांट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीट, दे आर गोइंग टू ईट ओनली दैट। उनको कोई पर्टिकुलर प्लांट चाहिए तो दे आर नॉट गोइंग टू ईट अदर प्लांट्स। ठीक है, उनको वही प्लांट खाना है। हाईली अडेप्टेड, उनको सिर्फ एक ही मतलब इन्वायरमेंट में दे आर हाईली अडेप्टेड, दे आर वेरी मच डिपेंडेबल ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। दे आर वेरी सेंसिटिव टू चेंज, हल्का सा भी, जैसे मैंने कहा, टेम्परेचर चेंज, हैबिटेट लॉस, पॉल्यूशन उनको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। ओके, और जो जैसे कि है कि मतलब दे आर हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। व्हाई डू यू थिंक दे आर एट हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन? बिकॉज दे आर वेरी स्पेशलिस्ट, दे आर वेरी पिकी। जैसे कि आप देख ही रहे, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग। ओके, तो टेम्परेचर है वो अर्थ का वैसे भी राइज कर ही रहा है। सो इफ उनकी नीड से ऊपर टेम्परेचर जाता है, उनकी जो टॉलरेंस लेवल है उससे बाहर टेम्परेचर जाता है, तो दे आर द फर्स्ट वंस हु आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। फूड हैबिट्स है, अगर वहाँ से वो प्लांट्स हट जाते हैं किसी कारणवश, मैन maybe because of some natural disaster or what, so they can't survive on any other plant, तो इस वजह से they have higher risk of extinction। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है उसके एग्जांपल्स। कौन है हमारी स्पेशलिस्ट स्पीशीज? तो कोआला हमारे पास एक स्पेशलिस्ट स्पीशीज है जो कि सिर्फ यूकेलिप्टस लीव्स खाती है। ओके, वो सिर्फ उसी में रहती हैं, यूकेलिप्टस फॉरेस्ट में रहते हैं और सिर्फ उसी की लीव्स भी खाते हैं। पांडा हमारे पास है, तो पांडा की जो 99% डाइट है वो बैम्बू होती है और वो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, दे वोंट ईट एनीथिंग एल्स और वो कहीं और रहते भी नहीं है, सो दे आर वेरी स्पेसिफिक। ओके, आवर नेक्स्ट स्पीशीज journalist species, opposite to our specialist species, these are journalist species। ये आप नाम से ही जान सकते हैं, they are very journal, मतलब
जर्नल का मतलब है यहाँ पे दिस स्पीशीज लिव इन मेनी डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड ईट वेराइटी ऑफ फूड. Okay, it can easily adapt to changes in its surrounding. These species are flexible and can survive in both natural and man-made environment. Okay, तो ये बहुत flexible है. Temperature ranges इनकी बहुत ज़्यादा है. They will eat anything. They are not very particular to plants कि मैंने यही plant खाना है. Just like specialist species, they can have multiple food options for them. Okay, they are like the all-rounders in nature, not picky and very adaptable. Okay, तो इसके लेते हैं हम. They have wide habitat range, flexible diet, adaptable to changes such as survive. They can survive habitat loss, pollution, climate change, etc. They have high reproduction rate. मतलब जो इनका reproduction rate है वो high रहेगा, इनके offspring का number high रहेगा, और they may outcompete specialist species. We इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. हमने कहा कि जो बहुत पर्टिकुलर है, जिनको एक ही टाइप का खाना, एक ही टाइप का टेम्परेचर और एक ही टाइप का हैबिटेट चाहिए, दे विल हैव प्रॉब्लम्स टू अडेप्ट टू एनी अदर थिंग्स. द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट दे कांट हैंडल इट. बट जो कि हमारी जनरल स्पीशीज है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल और वो ईजीली अडेप्ट कर लेंगी चेंजेस में. तो ये हमेशा क्या, ये दे विल आउट कम्पीट स्पेशलिस्ट स्पीशीज. ओके, तो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास रकून. जो हमारा रकून होता है बेचारा, ये कूड़ा भी खा लेता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है, पेट फूड भी खा लेता है, फ्रूट्स भी खा लेता है. ये हमारे पास सब कुछ खा लेता है. ये फॉरेस्ट में भी रह सकता है और ये सिटीज़ में भी रह सकता है. और हमारा चूहा, इट इज़ अ वेरी फेमस टाइप ऑफ जनरल स्पीशीज़, आपको पता ही है. ये हमारे पास खाना भी खाता है, ये हमारे पास गार्बेज भी खा लेता है, जो भी इसको मिलता है ये खा लेता है बेचारा. एंड इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ह्यूमंस के आसपास रहता है, ये घरों में भी रहता है, बाहर भी रहता है, एक्सेट्रा. ओके, सो लेट्स समराइज आवर पीपीटी. ओके, डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट रोल्स इन इकोसिस्टम. हमने पढ़ा कि कैसे स्पीशीज के अलग अलग रोल होते हैं इकोसिस्टम में. ओके, सम स्पीशीज लाइक कीस्टोन अम्ब्रेला स्पीशीज क्या मेंटेन करने में हेल्प करती है, बैलेंस मेंटेन करती है इकोसिस्टम में. ओके, फ्लैगशिप स्पीशीज जो है हमारे पास, वो हमारे पास कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में यूज़ होती हैं. पब्लिक सपोर्ट गेन करने में हमारे पास जो यूज़ होती है उनको बोलते हैं हम फ्लैगशिप स्पीशीज. इंडिकेटर या फिर सेंटिनल स्पीशीज हमारे पास वो होती है जो इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में हमें बताती है. स्पेशली स्पीशीज जो होती हैं उनकी हमारे पास नैरो नीड्स होती हैं, बहुत ही हमने अभी डिस्कस किया ये. वाइल जो जर्नलिस्ट स्पीशीज है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं एंड कैन सर्वाइव इन मेनी प्लेसेस. ओके, तो knowing these types helps us understand which species to protect and how to protect ecosystem. इससे हमें क्या पता चलता है, हमें जब उनकी हैबिट्स के बारे में पता चलेगा, so it will help us to conserve these organisms better. Okay, it's better to know before conserving. तो इस हमारी जो पीपीटी है, इससे हमारा यही मकसद है that you are a step closer to our ecosystem. Okay, so that's all for our video. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप आपको समझ आया होगा. तो हम इसी के साथ अपना ये लेक्चर एंड करते हैं. थैंक यू.